Hey friends, welcome again to LCG today with a new video. And today my video is regarding the updation of different type of proteins which are present at the cell surface receptors. And the most of cell surface receptor proteins belonging one of the three classes which we're gonna discuss in today's video. In the previous video of part 1 we will discuss about the cell signaling. So in cell signaling, we will discuss about that how cells receive and respond to the signals from their surroundings. And they accomplish really a great variety of signal molecules which will secrete or expressed on the surface of one cell to the bind receptor expressed by the another between the integrating and coordinating functions. So these involves in the following steps, which are four type of steps. We will discuss in part 1 about this in detail. So if you will not go to that section, firstly you will move to the previous video, then come back to today's. And if you are new to my channel, please subscribe to my channel Let's Curious and Grow. Press the subscribe button, press the bell icon for not missing the recent updates. And in part 2 we will discuss about the extracellular and intracellular receptors proteins. So these extracellular and intracellular receptors involving the cell surface receptors which combining with the proteins, peptides, amino acids, various nucleotides. On the other hand, in the signaling molecules in the intracellular receptors, we will talking about the steroids and non-steroid hormones like thyroid hormone and retinoic acid. So binding of extracellular signaling molecules to the cell surface receptors which leads to increase or decrease in the concentration, and these signaling molecules are termed as the secondary messengers, which are basically intracellular in nature, and these having the low molecular weight signaling which include CAMP, CGMP, diacylglycerol, DAG, DAG, inositol, 1,4,5 triphosphate, that is IP3, and phosphoinositase and calcium. And in the previous part 2 we will cover the all classical steroid hormone receptors which remain associated with the heat stalk protein HSP in the cytosol. And we will also know about the heterodimeric nuclear receptors which bind constitutively to DNA with RXR as obligate partners. So in today's video we will cover about the cell surface receptors by class, one by one. So first of all we will talking about the G protein coupled receptors. In G protein, GPCR and बेसिकली द GPCRs आर प्रेजेंट इन द ऑल यूकैरियोट्स. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये किस किस के साथ लिंक करते हैं. तो ये सबसे बड़ी मीन्स द लार्जेस्ट फैमिली है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल सरफेस में. और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं इंट्रासेलुलरी और इंटरमीडिएट एक्शन प्रोड्यूस करते हैं ये आपके ग्यूनाइन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ. उनको ही बेसिकली जी प्रोटीन्स कहा जाता है. बेसिकली आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं. सो यहाँ पे आप टिपिकली देख रहे हो कि 7 मेम्ब्रेन स्पेनिंग डोमेन्स आर गिविंग देयर. इन द एब्सेंस ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल द हेटेरोडाइमेरिक जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज़ इनएक्टिव GDP बाउंड फॉर्म. बाइंडिंग साइट में आप जब देख रहे हो तो हार्मोन रिसेप्टर्स में क्या है, आपका एक कन्फर्मेशनल चेंज देखने को मिल रहा है रिसेप्टर का और एक्टिवेशन हो रही है जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ. अब इसके साथ होगा क्या कि इसके रिजल्ट में एक्सचेंज हो जाएगी GDP GTP के साथ. सब यूनिट अल्फ़ा पे अगर आप देखो, अल्फ़ा सब यूनिट यहाँ पे इंडिकेट की गई है. तो आफ्टर बिच अल्फ़ा एंड बीटा गामा डिसोशिएट, वो अलग अलग सेपरेशन हो जाएगी. अल्फ़ा अलग हो जाएगा और बीटा गामा अलग डिसोशिएट हो जाएंगे. एक आपको ज़्यादा शेडेड पोर्शन दिया रहा है और एक कम शेडेड पोर्शन में आपको दिया जा रहा है. सो द अल्फ़ा और बीटा अल्फ़ा सब यूनिट बाइंड्स विच बाइंड्स एंड एक्टिवेट्स द इफेक्टर, और फिर ये जाके एक्टिवेट करेंगे इफेक्टर को.
तो इसमें आपकी बेसिकली एक्शन मीडिएट होने के लिए एक्टिवेटर साइट्स होती हैं जिनको इफेक्टर कहा जाता है। बेसिकली एक फैमिली है, आगे एक चार्ट आएगा जिसमें इंडिविजुअल जी प्रोटीन क्या करते हैं, एक्टिवेशन और इनहिबिशन करते हैं पर्टिकुलर इफेक्टर सेल्स की। तो जो मेजर इफेक्टर प्रोटीन्स हैं जी प्रोटीन्स की, उनको हम कहते हैं एडिनाइलेट साइक्लेस, फोस्फोलिपेज, सी बीटा, CGMP specific phosphodiesterase, GEF of the monomeric G protein, kinase regulated potassium channels and voltage controlled calcium channels and PI3K टाइप काइनेस। तो यहाँ पे आप कुछ मेंबर्स देख पा रहे हैं अपने फैमिली में, ट्रांसड्यूसिन, गस्ट्यूसिन और अल्फ़ा बीटा आपको दिए हैं, और अल्फ़ा बीटा गामा के आपको अलग अलग एक्टिवेशन साइट्स, कौन के पॉजिटिव चैनल्स को एक्टिवेट करता है, कौन नहीं करता, वो सारा कुछ आपको इस सीरीज़ में दिया है। तो जब भी आपको सेल सल्फेट जी प्रोटीन्स की बात याद रहे, उसके लिए आपको फैमिली और उसके कुछ एक मेंबर्स को याद करने की ज़रूरत है ताकि आप इफेक्टर्स को बेसिकली याद कर सकें। इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड में आपको जो आपकी डायग्राम है, इसमें आपको दिखाया गया है कि जो बाइंडिंग है एक्स्ट्रा सेलुलर मीन बाहर के सरफेस पे सिग्नल मॉलिक्यूल्स GPCRS कैसे एक्टिवेट करते हैं। लाइक एडिनाइल साइक्लेज जो है वो आपका साइटोसेल के साथ इंक्रीज़ करता है कैम्प की कंसंट्रेशन को, और फिर साइटोसोल में आता है और ये राइज करता है कैम्प कंसंट्रेशन, और कैम्प कंसंट्रेशन जैसे ही इंक्रीज़ होगी वो एक्टिवेट करेगी आपकी PKA को, दैट इज़ द प्रोटीन काइनेज। मीन्स जो कैम्प डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है वो बाद में किस में टर्म हो जाएगा, प्रोटीन काइनेज A में। तो इस डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है कि एक्टिवेशन हो गई साइक्लिक AMP की डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज के साथ, जिसको हम PKA बोल रहे थे, और ये बाइंडिंग साइक्लिक AMP के साथ हुई है ताकि ये रेगुलेटरी सब यूनिट में कन्फर्मेशनल चेंजेस ला सके। फिर ये डिसोशिएशन हो गई सारी सब यूनिट्स की, अल्फ़ा बीटा गामा की, और इसने एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना दिया। अब ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा कैटालिटिक सब यूनिट्स को। सो हर एक रेगुलेटरी सब यूनिट के पास 2 साइक्लिक AMP बाइंडिंग साइट्स आप देख पा रहे हैं बन गई हैं। और जैसे ही वंस दीज कैटालिटिक सब यूनिट्स ये जैसे ही फ्री होंगी, ये एक्टिव करेंगी और माइग्रेट करेंगी, न्यूक्लियस की तरफ जाएंगी। न्यूक्लियस की तरफ जाने से होगा क्या कि ये फॉस्फोग्लिसरेट जो जीन है वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स की सब यूनिट्स को वैसे के वैसे ही रखेंगे साइटोप्लाज्म में। सो यहाँ पे आपकी ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूस हुई कैम्प की वजह से। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है सो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल लेट्स क्यूरियस एंड ग्रो फॉर फर्दर अपडेशन ऑफ द वीडियोस, और ताकि इन पार्ट 4 में आपको नेक्स्ट प्रोटीन काइनेज फॉस्फेटेज के बारे में बताऊंगी। और इसमें हमने 2 आपकी मेन क्लासेस को कवर कर लिया है। सो हमने कैम्प प्रोटीन काइनेज A के बारे में डिस्कस कर लिया और GPCR प्रोटीन्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। एंड बेसिकली नेक्स्ट में मैं आपका आगे डिस्कस करूँगी। सो थैंक यू सो मच।